Assalamu alaikum warahmatullah. Now this video is about the worksheet which I have uploaded on the GCR. It's about Pythagoras theorem. In the previous video I have already explained what the Pythagoras theorem is and in which scenarios you are going to use it. So these are just practice questions, and to make the best out of this video is that you see the question, you don't see the whole solution, you just pause the video and try to solve it by yourself. Once you are done with it, then see the solution, what technique I have used, so that you can update your technique, and secondly you will see and match the solution and also the answer, right? Second thing is that I'm not going to solve each and every question because most of them are very simple. So something I'm going to do is I'm going to just give you a simple hint for that. I'm going to solve the more difficult questions so that you can be ready for the challenges, right? So let us continue. So you can read the questions, very simple. It says the rectangular swimming pool has a length of 50 meters and a breadth of 30 meters. During a swimming proficiency test, Ethan has to swim from one corner of the pool to the opposite corner. Find the distance Ethan has to swim. So here, one thing which you need to do is simply draw a diagram. Now this is your diagram, right? So this is the swimming pool, we can consider it. The length of it is 50 meters, so let me write it down 50 over here. Its breadth is 30, so this is 30 meters, right? And the swimming has to be done from one corner to another. You can simply see and you can figure it out that this is a right angle triangle, ठीक है ना? तो इसके अंदर this is 30, so this is also 30, this is 50, this is also 50, सही ना? Opposite sides are equal. So करना ये है कि आपको इसमें right angle triangle नजर आ रहा है. अगर मैं इसमें जरा और बेहतर बना दूं, like this, सही है ना? ठीक है, ये right angle triangle है, मैं इसको highlight कर देता हूँ. इस right angle triangle को देखिए, अब देखो Pythagoras theorem से कैसे आएगा. What this side is, this is x and this is basically the hypotenuse, right? Formula is h squared is equal to b squared plus b squared. Put the values, get the answer. So this second question is about the table coaster. There is a table coaster in the shape of a rhombus, has diagonal of length 10 centimeter and 24 centimeter. Find the length of each side of the coaster, right? So what you need to do is you need to look at this diagram carefully and see what do you find. So over here you can see that, अच्छा, एक चीज जो रोम्बस के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल कहते हैं बेटा अपोजिट कॉर्नर से ऐसे कनेक्ट करने वाली लाइन को, ठीक है? ये जो इसकी डायगोनल्स होती है ये 90 के एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, समझ आई? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये चीज आपको काम आएगी. अब ये 90 के एंगल पे कर रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ठीक है? तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है तो आपको सिंपली क्या देखना है कि ये एक छोटे से ट्रायंगल को इस पे देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, सही है ना? ओके, तो अब इसमें ये पूरी लेंथ अगर 10 है तो ये हाफ लेंथ यानी यहां से लेकर खाली यहां तक कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. अगर ये पूरी 24 है तो बेटे ये 12 हो जाएगी. अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अलग से बना लूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना वहां भी बहुत साफ नजर आ रहा है. ये साइड हो गई 5, एंगल है 90, ये साइड हो गई 12. आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज को आप x ले लें, ठीक है? और फॉर्मूले में अप्लाई करें, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आप सॉल्व करें, सही है? सॉल्व करें, इसमें वैल्यूज डालें, आंसर निकालें. बाद में उसका लास्ट में क्योंकि वो h स्क्वायर की वैल्यू होगी या x स्क्वायर की वैल्यू होगी तो लास्ट में आपको रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना, जो है ना, ये दोनों बोथ साइड्स का, ये मत भूलिएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें, आंसर आ जाएगा. सही? ओके, ये क्वेश्चन इसको देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा. इसमें पूरी डिटेल बता रहा है कुछ स्पॉटलाइट्स के बारे में. स्पॉटलाइट पता है आपको क्या होती है? कि जो स्टेजेस पर इस्तेमाल होती है थिएटर के अंदर, किसी खास पॉइंट के ऊपर इस तरह लाइट को, यानी किसी एक्टर के ऊपर लाइट जो है वो शो करने के लिए इस तरह की लाइट्स होती है, ऊपर की बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई होती है, ठीक है? किसी खास स्पॉट को या एक्टर को हाईलाइट करने के लिए होती है, ठीक है? ओके, सो अब इसने क्या बताया कि 2 स्पॉटलाइट्स हैं, 2 स्पॉटलाइट्स हैं, एक P है एक Q है, ठीक है? आर माउंटेड ऑन वर्टिकल पोल, एक पोल है, वर्टिकल पोल है, ठीक है? उसके ऊपर उनको लगाया हुआ है, एक पॉइंट P पर लगाई हुई है, एक पॉइंट Q पर लगाई हुई है, ठीक है? लाइट बीम फ्रॉम P एंड Q शाइन ऑन 2 पॉइंट्स इन द ग्राउंड H और K, यानी P से निकलने वाली जो लाइट है बेटे, P से निकलने वाली जो लाइट है वो
पॉइंट एच के ऊपर स्पॉट कर रही है और क्यू वाली लाइट जो है वो के पर स्पॉट कर रही है, ठीक है। ओके, रिस्पेक्टिवली गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12.7, पी क्यू जो है बेटा वो 12.7 दिया हुआ है, सही है। और गिवन दैट पी क्यू 12.7 है, के भी, ये सारी जो डायग्राम में बनी ना सारी डिटेल इसने इसमें बता दी है, ये सब रीड करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इस डायग्राम में भी नजर आ रही है, ये टाइम बचाने की भी बात होती है, ठीक है। आप देख लें सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई। ओके, सबसे पहले कह रहा है बी क्यू फाइंड करो, द हाइट above the ground at which the spotlight is mounted। तो बी क्यू सबसे पहले चेक कर ले, मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट करता हूं ताकि नजर तो आए कि क्या चीज है। बी क्यू क्या है बेटा, बी क्यू ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन सिर्फ यहां तक, ये लाइन है बी क्यू। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना के देख लेता हूं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया ऐसे करके हूं और ये वाली लाइन है बी क्यू, ठीक है। तो अब बी क्यू को अगर तुम मेंशन कर रहे हो तो बी क्यू की लेंथ को तुम एक्स ले लो, ठीक है। ये 17.2 है इसकी और ये 90 का एंगल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 21 मीटर है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो अब इसके अंदर देखो क्या इस्तेमाल होगा, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज एच स्क्वायर, सामने नजर आ रहा है कि हाइपोटेनियस हमारी ये वाली साइड है 90 के सामने वाली, कितनी दफा हम ये बात रिपीट करते रहते हैं, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर आपने रखा इज इक्वल टू पी, व्हाट इज पी, पी परपेंडिकुलर इस नहीं पता, ये नहीं पता, एक्स है, ठीक है। तो इसको एक्स ले लो, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा इसका 17.2 का स्क्वायर। अच्छा, बाज दफा एक छोटी छोटी टिप भी इसमें समझा करो जो कि टीचर्स बताते भी रहते हैं और ये चीजें आपके फायदे की होती हैं। जो भी मैथमेटिक्स को शौक से करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उनको ये बातें याद रखनी चाहिए कि बेटे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हर चीज के अंदर फौरन पूरे पूरे नंबर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बल्कि कैलकुलेटर का तरीका ये है बेटा कि सारी चीजों को एक जगह नंबर्स को एक्यूमुलेट करें और उसके बाद वो कैलकुलेटर पुट करके उसे सॉल्व करें। ऐसे नहीं कि एक साथ ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको करके दिखा देता हूं कैसे करना है आपने। ये देखिए, करना ये है आपने कि 21 का स्क्वायर इसको ऐसे लिखे, ये जो नंबर है ये अगर इक्वल टू के उस तरफ मूव करेगा तो ये हो जाएगा -17.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेटर के अंदर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। ये मेरे पास आ रहा है 145.16। मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूं। अब मुझे अगर इस पे रूट को खत्म करना है स्क्वायर रूट को, तो मैं इधर और इधर स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करना तो स्क्वायर रूट ले लिया, इससे स्क्वायर रूट से ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, खाली x, ठीक है। और ये रूट निकलने के बाद क्या आएगा ये मैं बता दूं, ये आएगा 12.048। तो 12.048 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। आ जाओ बेटे, ये पार्ट हो गया आपका, सही है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, एच के फाइंड करना है। तो एच के जरा देखें, एच के क्या है, ये रहा एच के, दिस इज एच के, सही है ना। एच के ये आपको फाइंड करना है, सही है। तो एच के कैसे फाइंड करेंगे, अब आइए देखते हैं दोबारा से। देखिए एक मिनट, जो साइड आपकी आ गई है 12.048, तो उसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इट इज नाउ 12.048, सही है। ओके, अब आप देख लीजिए कि इसको कैसे करना है। ओके, ये देखिए डायग्राम के सामने एच के मैंने ग्रीन से दोबारा हाईलाइट कर दिया कि ये नजर आ जाए आपको कि एच के इसकी बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है बेटा, करना क्या है, आपके पास ये पूरी की पूरी, अब ये बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ये पूरी की पूरी आपके पास यहां से लेंथ मौजूद है। ये देखिए ये पूरी चीज आपके पास मौजूद है। कैसे, आप ये 2.7 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल यहाँ की पूरी लेंथ आ जाएगी, सही है। और आपके पास ये हाइपोटेनियस ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लेंथ निकालें और उसके बाद फिर ये 17.2 को उसमें से माइनस कर दें। जब आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल, आपके पास सारी चीजें टोटल आ जाएंगी। ओके, जो दूसरा सवाल में वो आ जाएगा, सही है। तो आप सबसे पहले इनको ऐड करें, 17 ये 14 को इसमें ऐड करें, ठीक है। सॉरी 2 पॉइंट, ये 12 नहीं था, ये 2 नहीं था, 12.7 था, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूं, 12.048 12 तो ये आ गया बेटा 24, ये आ गया टोटल यहां से यहां तक, ये आ गया 24.748, सही है, 748 आ गया।
अच्छा, अब आपके पास अब ये सारी चीजें हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में डालें। एच स्क्वायर कितना है बेटा इसका? 39 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा? ये 24.748 का स्क्वायर लेना है प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा था कि सॉल्व करने के लिए पहले एक जगह सबको एक्यूमुलेट करें, उसके बाद कैलकुलेटर में एक दफा वैल्यू डालें और उसके बाद से सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक ही मतलब राउंडिंग ऑफ करके आंसर निकालें। ये नहीं हो कि पता चला आप सॉल्व भी करते जा रहे हैं और साथ साथ जो है नंबर भी बड़े बड़े लिख रहे हैं, फिर वो उधर भी मूव कर रहे हैं, फिर कोई नंबर खामखी उसे राउंडिंग ऑफ भी करते जा रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आंसर आपका बाज दफा एक्चुअल आंसर से बहुत दूर चला जाता है। 39 का स्क्वायर माइनस 24.748। अच्छा, मैं जब कैलकुलेटर में कर रहा होता ना, तो आप भी कोशिश करें कि अपने कैलकुलेटर में आप भी इसे सॉल्व करें साथ साथ। ऐसा ना हो कि आप जो है वो ना करें। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 908.536 आ रही है। मैं इसको नहीं लिख रहा, मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसका रूट निकाल लेना चाहिए। तो मैं रूट निकाल लेता हूँ। ये आ रहा है 30.141। लेकिन क्या हमारी एक्चुअल आंसर है? नहीं, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। 30.141 हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने सिर्फ एच के पूछा था, और ये जो 30.141 है, याद रखिए कि आपने बड़ा ट्रायंगल कंसिडर किया तो बेटा ये पूरी लेंथ आई है यहाँ से आकर, और आपको फिर ये वाली लेंथ है इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। 17.2 को ये आ गया 12.941। 12.941 ये मेरा एच के की वैल्यू आ गई, एच के की। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है अबाउट अ कैंप साइट एंड इट्स इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, हैज साइड्स। अब इसमें सिंपली चेंज क्या चीज हुई है? चेंज ये हुआ है कि इसने नंबरों के बजाय आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देनी शुरू कर दी है। ठीक है ना? तो ये सिंपल यही नेक्स्ट लेवल होता है इनका, कि इसके अंदर मैक्सिमम क्या करेंगे कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देने शुरू कर देंगे नंबरों की जगह पे। तो ऊपर जितने क्वेश्चन किए आपने नंबर्स के साथ सॉल्व किए, अब जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और इसमें लेंथ भी दी हुई है डायगोनल की, ये भी एक्सप्रेशन की सूरत में है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप साइट। आपको एरिया ऑफ द कैंप साइट चाहिए। एरिया ऑफ द कैंप साइट के लिए आपको मालूम है कि आपको एक्स की कोई वैल्यू निकालनी होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू अभी तक आपको नहीं पता कि क्या है। तो न्यूमेरिक वैल्यू याद रखिए कि लेंथ होगी, तो लेंथ नॉर्मली पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आप चेक करें, जब भी इसे सॉल्व करेंगे इस तरह की एक्सप्रेशन को, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इन तीन चीजों को ऐसे करेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये ट्राइंगल देखा हमने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज की जगह पर ये 4x+1 लिखा हुआ है। बेस या इसकी मतलब वन साइड जो लिखी हुई अपोजिट साइड, उसको ये 3x+6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपोजिट साइड है, और ये जो बेस साइड है इसकी वो ये है। नाम से सिर्फ सच को फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हाइपोटेन्यूज का मसला होता है कि हाइपोटेन्यूज आपको याद रहे कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, वो 90 के सामने है। बाकी इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर लिख देता हूँ। वही स्टेटमेंट है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बेटा, मैं जब आपके साथ बोलता हूँ ना, तो कोशिश क्या करें आप भी मेरे साथ साथ बोलें, इससे आपको याद होगा चीजों का। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होती है, लेकिन आजकल के बच्चे वो भी याद करने में उन्हें दिक्कत आ रही होती है। तो इतना मसला नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब एच स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? इस डब्बे का स्क्वायर बना देंगे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह डब्बा बना के इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस का स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर कर देंगे। राइट, तो एच स्क्वायर में क्या है? आप रखेंगे 4x+1। ठीक है, पी स्क्वायर क्या है? वही परपेंडिकुलर जो है वो, ये अपोजिट साइड जो है वो 3x+1 है। ठीक है, और जो बेस साइड है 6x+6, सॉरी 3x+6। ठीक है, और जो इसकी बेस साइड है, सही है, वो कितनी है? x+1। सही। अब करना क्या है, देखिए ये होल स्क्वायर है, आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी मालूम होगा। मैं फिर भी यहाँ पर एक बार हल्का सा रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटे, वो है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल देसी अंदाज में करो, देसी अंदाज में डब्बा स्क्वायर प्लस 2 डब्बा डब्बा। ठीक है, दो डब्बे बनाए यानी कि डब्बा डब्बा प्लस डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या करेंगे, इनके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, यानी पहले दो डब्बों में शुरू वाली वैल्यू
और आखिरी के दो डब्बों में आखिरी वाली वाली। ये पूरे एक एक्सप्रेशन बन गई। इसे सॉल्व करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल सिंपली इसी वे में मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है, सही है। तो एक एक करके मैं सॉल्व करता जाता हूं, ये देखिए, ठीक है जनाब। जो पहला वाला है, इसके अंदर क्या करूंगा, इसको भी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना बेटा, तो इसको इसी फॉर्मूले से खोलना है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, एक डब्बा स्क्वायर प्लस 2 डब्बा प्लस डब्बे का स्क्वायर, राइट, सही, इज इक्वल्स टू। बहुत सारी ऐसी देसी टर्म्स होती है जो आसानी से याद हो जाती है। बॉक्स के लिए या ब्रैकेट के लिए आई यूजुअली यूज द टर्म डब्बा, वेरी सिंपल। कोई डब्बे का काम भी यही होता है, किसी चीज को होल्ड करना, इसका काम भी होता है किसी वैल्यू को होल्ड करना, ठीक है। तो डब्बे का स्क्वायर प्लस 2 डब्बा प्लस डब्बे का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, इसके अंदर भी ये फॉर्मूला होगा, तो इसको प्लस डब्बे का स्क्वायर प्लस, मेरे साथ साथ बोले ताकि याद हो जाए, डब्बा प्लस डब्बे का स्क्वायर। ये थोड़ा राइमिंग सा भी लगता है मुझे, ओके। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज रखना शुरू करें। तो सबसे इसमें ये, क्योंकि ये इसके लिए बनाया गया है, तो पहले दो बॉक्सेस में 4x आएगा, 4x आएगा, दूसरे दो बॉक्सेस में 1 और 1 आएगा। इसमें क्या आएगा, ये ग्रीन से मैंने जो किया ये इस वाले का है, सेकंड वाले का है, तो ये 3x प्लस 6 था, तो पहले दो डब्बे में 3x आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट टू बॉक्सेस में 6 आ जाएगा। तीसरा वाला जो मैंने रेड से बनाया है वो किसके लिए, वो इसके लिए है। तो ये पहले दो डब्बों में x पहली टर्म आ जाएगी, दूसरे डब्बों में दूसरी टर्म आ जाएगी। एक एक करके इसको सॉल्व करना शुरू करें। आपके पास, मैं इसे ब्लैक से ही कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 6 36 x प्लस 36, नीचे वाली रेड वाली टर्म को नीचे वाली में यहां पे नीचे जगह रखा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब इन सबको एक तरफ ले जाए ताकि सब्ट्रैक्ट ऐड होकर टोटल हो जाए, या खुद मेंटली भी कर सकते हैं कि ये 9x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों ऐड होकर 10x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जब ये 10x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटा, खाली 6x स्क्वायर बचेगा, सही है, ठीक है, 6x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। स्क्वायर वाले हो गए। अब ये 8x है, ये 36 है प्लस 2, तो ये 38 हो गया, 38 उधर आएगा तो ये माइनस 38x हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से प्लस 8 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 30x प्लस 1 है, ये 36 प्लस 1 37 हो रहा है, ये प्लस 1 दोनों तरफ है तो ये उधर आएगा तो माइनस 36 बचेगा इसके अंदर, सॉरी इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए टर्म को। देखो कोई ऐसी बड़ी एक्सप्रेशन आ जाती है इसमें बड़े बड़े नंबर आ जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बेस्ट तरीकों में होता है कि आप सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन की टेक्निक है उसको कॉमन निकालें, 6 कॉमन निकालें, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो समझो कि 0/6 हो गया जो कि खत्म हो गया, समझ आई, यानी ये हो जाएगा 0/6 जो कि बराबर होता है 0 के, समझिए, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो खाली एक्सप्रेशन क्या बची, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जो यहाँ पर टेक्निक यूज करूंगा, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टेक्निक यूज करूंगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह किया था, याद करो कि ये, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो तुम क्या करोगे, माइनस 6 को 1 लेके जाओ, वहां लेकर जाके आप इसको मूव करोगे उस तरफ, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है मैं बता देता हूं। इसके अंदर करना ये होता है बेटे, एक मिनट थोड़ा सा मैं दूर करके लिखूं, इक्वल्स टू 6, ठीक है, ओके। अब आपने दोनों तरफ जो है ना ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड करना है किसको, एक बॉक्स के स्क्वायर को एक बॉक्स के स्क्वायर, ठीक। अब इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, सुनते जाओ। इसके डिनोमिनेटर में 2 लिखूं क्योंकि दोनों तरफ दोनों में, दिस कुड बी अ परपेंडिकुलर, this could be your base, right? Go ahead. Now let us see the another question. Denominator में 2 लिखो और ये जो 5 है ना, यानी x की जो कोफिशिएंट है वो इनमें न्यूमरेटर में लिखो, यानी कि ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, समझ आई, ये हो गया 5। ये पूरी सेम चीज करनी है, बहुत सिंपल है। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे इस साइड को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस साइड को करो, इस साइड को करो, ये क्या बन जाएगा, इट विल बी, इट कैन बी रिटन एज
x का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये यही चीज लिखिएगा, तुम देखो तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 2 से 2 5x माइनस 5x ही बच रहा है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ताकि पता चल जाए कि ये स्क्वायर बन चुका है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व कर लो, ये आया 12.25, ठीक है। और इसको तुम क्या कर सकते हो, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा होल स्क्वायर के साथ, पहली टर्म यहां से उठाओगे, लास्ट टर्म यहां से उठाओगे, इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, और ये माइनस का निशान यहां से, तो x माइनस 2.5, ठीक है, इक्वल्स टू 12.25। अब क्या करूं, दोनों साइड का रूट लो, स्क्वायर खत्म करना है, इसका रूट और इसका रूट, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, खाली x माइनस 2.5 बचा, और ये हमारे पास जो आ गया, ये आ गया हमारे पास प्लस और माइनस के साथ, ठीक है, इसके साथ दोनों साइन आएगी ओके। तो अब तुम्हारे पास ये चीज आ गई, यानी माइनस 2.5 को उस तरह लेके बाद एक्स कर देता हूं, प्लस माइनस रूट 12.25, सही। अब आप इस माइनस के निशान को ले जाओगे, ये नॉर्मली भी 5 नंबर से ज्यादा या 5 नंबर तक का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 2.5 प्लस रूट 12.25, एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2.5 माइनस रूट 12.25, सही है। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो दोनों वैल्यूज निकालो, क्या आता है जवाब देखो, ये आपके पास 2.5 प्लस रूट 12.25, ये आ रहा है 6, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 2.5 माइनस रूट 12.25, ये कितना आ रहा है, -1, एक्चुअली एक वैल्यू आ रही है जो है -1। ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेंथ है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, ये x इज इक्वल टू 6 हो गया, सही है। अब इसको क्या करोगे, इसको तुम हर साइड में, यानी इसने पूछा क्या था, इसने ये पूछा है ना कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप साइट, तो कैंप साइट जो है पूरी, इसमें दो साइडें ऐसी हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इसका एरिया के लिए, एक ये साइड और एक ये साइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो x की वैल्यू 6 लोगे, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास जो रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल की दोनों साइडें वो निकालो जिसको जो कि तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया दे देंगे, राइट। तो रेक्टेंगल तुम्हारे सामने बना हुआ है, अब रेक्टेंगल को देखो जरा अच्छी तरह, ठीक है। 6 वैल्यू तुमने ली है, तो इसकी जगह 6 प्लेस करोगे, तो ये जो साइड है इसकी लेंथ 7 आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ पर 6 प्रेस करोगे, इसके अंदर मिटा दो पुरानी चीजें, ओके। तो अब जब यहाँ पर तुम 6 प्रेस करोगे, यानी 6 प्लेस करोगे इसकी जगह वैल्यू को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 प्लस 6 24, ठीक है, ये 24 आ गया, समझ आई। अब ये 6 18, 18 प्लस 6 जो है वो 24, ये वैल्यू आ गई। अब तुम्हारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कैसे आता है, लेंथ इंटू, यानी एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी 24, और विड्थ या ब्रेड्थ कितनी है इसकी 7, तो 24 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 168 आ, ये 168 इसका आंसर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये 5वां सवाल है, अ फोल्डेड नैपकिन हैज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड दिस दिस एंड दिस, ठीक है। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 90, इससे इसने ये बता दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल। पढ़ना जाता है सवाल को तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। अब उसने बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है। ओके, और इसके बाद जो चीजें इसने बताई हैं उसके मुताबिक चीजें रखना शुरू करो। इसके अंदर 90 का एंगल, तो ये मैंने फॉर्म कर लिया कि 90 का एंगल है, ठीक है। ओके, इसके बाद जिन 3 साइडों की इसने बात की, इस पे थोड़ा गौर करो। एक साइड है x, एक x+1, एक x+2। हमेशा याद रखो बेटे कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की,
तो आपके सामने x प्लस 2 सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, ये यहां पर होगी, सही है। x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, तो जब ये सॉल्व करोगे तो लाजमी तौर पर x प्लस 2 ही सबसे बड़ी साइड आएगी, तो x प्लस 2 का हाइपोटेन्यूज लो, बाकी एक साइड को x ले लो, एक को x प्लस 1 ले लो, ठीक है। बाकी इन दो साइडों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका बहुत ख्याल रखना कि हाइपोटेन्यूज देख कर लेनी होती है सबसे बड़ी साइड। और इवन वेरिएबल्स में भी आपको अगर निकालना पड़ जाए तो कोई एक वैल्यू खुद से सजेस्ट कर लो, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, x की जगह वैल्यू, और आप उसमें सारे इस तरह के कंपोनेंट्स में जब पुट करोगे तो तुमको वैल्यू पता चल जाएगी कि x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बस वही तुम्हें हाइपोटेन्यूज रखनी है। ओके, तो सवाल शुरू करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। हाइपोटेन्यूज क्या है? x प्लस 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ आई? अब ये फॉर्मूला से वही फॉर्मूला है, कैसे? डब्बे का स्क्वायर, ठीक है, याद रखने वाली बात है, पीछे अभी वीडियो में बता चुका हूं, प्लस 2 डब्बा डब्बा प्लस डब्बे का स्क्वायर, ये इसके लिए बनाया है, ठीक है, इक्वल टू का निशान। उसके बाद दूसरे वाले के लिए क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर है जो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस लास्ट वाले को लास्ट वाले के लिए प्लस डब्बे का स्क्वायर प्लस 2 डब्बा डब्बा प्लस आखिरी डब्बे का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यूज मैंने पुट करनी है। अब देखो इस वाले के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं x फिर 2 ठीक है। इसमें क्या पुट करूंगा? x फिर 1 फिर 1, ठीक है, ओके। तब इसके बाद मैंने सॉल्व करना शुरू करना है इसको बेटा। ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी ये इक्वल टू दूसरी तरफ है, ठीक है, इसको इक्वल टू पहले लगा दूं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1। अब ये इसको जरा ऊपर कर ले, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा? देखो ये एक्स स्क्वायर्ड इधर है, ये दोनों मिल करके कितने बन जाएंगे? 2x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरफ आएगा तो माइनस 2x, यानी इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1 बन गया, और इधर बन गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब ये सबको इस तरफ लेकर चले जाओ तो यहां तो 0 बचेगा, ये 2x स्क्वायर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस 2x लिखा हुआ है, प्लस 1 लिखा हुआ है। जब ये वाले इस तरफ आएंगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव साइन के साथ माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x माइनस 4। अब इन सबको सॉल्व करो और इस तरफ लिख दो, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो खाली एक्स स्क्वायर बचा, 2x है, माइनस 4x जब हुआ तो माइनस 2x बचा, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 बचा, इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर लो। पिछला सवाल मैंने जो किया था वो आपको से करवाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ये वाला मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेता हूँ, या बोलो तो इसे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही कर लेते हैं। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर रिपीट कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे? इक्वल टू 0 लिखा है, माइनस 3 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2x। अब मैंने कहा था प्लस एक बॉक्स बना के स्क्वायर प्लस एक बॉक्स बना के दोनों साइड पे बॉक्स का स्क्वायर। अब हमेशा इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो है वो ये वाला जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर आएगा। ये अप्लाई करने के लिए याद रखो कि हमेशा जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमेशा x का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो फिर यही टेक्निक अप्लाई हो जाएगी, सही है, ओके। तो अब इसको तुम जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हुए क्या आएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 ही आ रहा है, ठीक है। और ये चीज सॉल्व कर लो, ये 2 1 का 1 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो ये 4 बना, सही है, ओके। और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपके पास खत्म करने के लिए आप इसको रूट लगाओगे, इधर भी रूट और इधर भी रूट लगाओगे, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करोगे? यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, x माइनस 1 बचा, और यहाँ पर प्लस ये माइनस 2 बन गया, ठीक है। तब दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 हो गया, तो प्लस 1 प्लस 2, और x इज इक्वल टू प्लस 1
-2 +1 -2, ठीक है। सॉल्व करो तो ये 3 बनेगा, सॉल्व करो तो ये -1 बनेगा। तो x की एक वैल्यू 3 बन गई, एक वैल्यू -1 बन गई, सही है। तो अब इसमें क्योंकि वो लेंथ की मेरे ख्याल में बात कर रहा था, है ना, लेंथ की बात कर रहा तो लेंथ पॉजिटिव लेनी है, तो आंसर जो है इसका एक्चुअल में 3 लेना चाहिए आपको। दिस इज द आंसर वैल्यू, ठीक है। थैंक यू, बाय हाफिज़।